इस इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक। फिर डिस्टेंस फार्मूला आया, सेक्शन फार्मूला भी हमने यूज किया। सो ऑल दीज आर फ्रॉम 10th ओनली। तो जो कुछ नई चीजें हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक। लेट अस टेक वन बाय वन। सो फर्स्ट वन, in Cartesian system of rectangular coordinates, it means we are talking about coordinate geometry. So जब हम Cartesian system किसे बोलते हैं, जहाँ पर x axis और y axis हम ड्रॉ करते हैं. So these are called as coordinate axis. O is their origin. Now x coordinate and y coordinate. So every point is represented by x coordinate and y coordinate. We are writing x coordinate first, comma दे करके हम लिखते हैं y coordinate. Clear? So you can define a unique point on the plane. That is on the graph paper, let us say. ठीक। अब जो x कोऑर्डिनेट होता है, it is also called as abscissa. ये चीज ध्यान में रखने वाली है। x कोऑर्डिनेट is called as abscissa and y कोऑर्डिनेट is called as ordinate. ठीक है। Next thing, distance formula for polar coordinates. Now we have already discussed polar coordinates in trigonometry. ठीक है, polar coordinates हमने डिस्कस किए। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ r, थीटा। जैसे कार्टेशियन हम कैसे लिखते हैं, x, y। पोलर लिखे जाते हैं r, थीटा में, वेयर r इज द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल। ठीक। तो यहाँ पर अगर दो पॉइंट्स हम लेते हैं, लेट अस से r1 थीटा 1 एंड अनदर पॉइंट इज r2 थीटा 2, देन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, अब ये पोलर फॉर्म में है। अब इसके बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो दो तरीके आपके पास है। एक तो क्या, आपको डिस्टेंस फार्मूला कार्टेशियन फॉर्म में मालूम है। कार्टेशियन फॉर्म में मतलब x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर का अंडर रूट लेते हैं आप। ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का आप कन्वर्ट कर लीजिए, बट दैट इज क्वाइट लेंथी। तो हमने डायरेक्ट उसी को कन्वर्ट करके डायरेक्ट जो डिराइव किया है, दैट इज द फार्मूला फॉर distance between two points having polar coordinates is given by under root of r1 square plus r2 square minus 2r1 r2 cos of theta 1 minus theta 2. So that is the distance between two polar coordinates. Next, section formula हमने देखा है। section formula ठीक, कल हमने डिस्कस भी किया था। there are two types of section formula for internal division and for external division. Now there is a practice for denotation of this ratio. There is a practice for denotation of this ratio. So if m upon n is written as positive, then we treat it as internal division, and if m upon n is negative, ठीक है, if m upon n is negative, then it is treated as external division. Next thing, x-axis divide join of A and B. Let us say there are 2 points A and B. तो अब A और B पूरा कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, मतलब कि ग्राफ पेपर पर अगर दो पॉइंट्स होंगे और उनको जो x-axis डिवाइड करेगा, so it x-axis divides this join of A and B in the ratio minus y1 upon y2. ठीक है, it divides in the ratio minus y1 upon y2. Similarly, y-axis कैसे डिवाइड करता है, y-axis divides the join of these 2 points in the ratio minus x1 upon x2. ठीक। तो ये किस तरीके की बात हो रही है, जैसे ये वाला पॉइंट हुआ एक A पॉइंट, दिस इज लेट अस से पॉइंट B, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब इस ज्वाइन करने के बाद ये x-axis ने यहाँ पर डिवाइड किया, x-axis has divided this join internally. ये इंटरनल आया, कभी एक्सटर्नल भी आ सकता है। दिस x-axis has divided this join AB internally in the ratio what? In this ratio minus y1 upon y. ठीक। सिमिलरली अगर y-axis का आप निकालेंगे, so it is minus x1 upon x2. Next thing, coordinates of any point on the join of a x1 y1 and x2 y2. अगर हमने ये join निकाला है, ठीक है, this is join AB और segment AB, it is also called as join AB. अब ये जो लाइन है AB, इस लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर आपको चाहिए, so it is always in the form of x1 plus lambda x2 upon 1 plus lambda, comma y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, y1 plus lambda y2 upon 1 plus lambda. ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में अगर 1 plus lambda है, इसका मतलब लैम्बडा की वैल्यू -1
नहीं होनी चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब जो लाइन ए बी है, सेगमेंट ए बी है हमारा, ज्वाइन ए बी है, इसके ऊपर का कोई भी पॉइंट हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली व्हाट इट इज डिवाइडिंग द ज्वाइन ए बी इंटरनली और एक्सटर्नली, इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो हमने उसी फॉर्म में लिखा है। सेक्शन फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पर हमने m की वैल्यू 1 ले लिया, तो मेरे पास ओनली 1 ये बचता है, मतलब क्या बोलेंगे हम, पैरामीटर। देयर इज ओनली 1 पैरामीटर, दैट इज लैम्बडा, एंड दिस लैम्बडा हियर इज नथिंग बट इट इज m अपॉन n। दिस लैम्बडा is nothing but m upon n। m upon n ही होगा, क्यों? क्योंकि हम इस तरीके से लिखते हैं, इधर m इधर n, तो mx1 प्लस nx2 इस तरीके से जब आप लिखेंगे और डिवाइड बाय m से कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, यू विल गेट दिस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा, दैट इज ओनली 1 पैरामीटर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो वेरिएबल है, m और n, दोनों चीजें वेरिएबल है, बट हमने कन्वर्ट कर दिया उससे लैम्बडा में। So any point on the join of AB can be expressed in this format. x1 plus lambda x2 upon 1 plus lambda. Similarly, y1 plus lambda y2 upon 1 plus lambda. Now, if a line ax plus by plus c equal to 0 divides join of AB, again a is what? It is x1 y1, b is what? It is x2 y2, और इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन डिवाइड कर रही है, मतलब एक लाइन ऐसे कट करके जा रही है, and equation of this line is let us say ax plus by plus c। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी ये इन दोनों को? So that is given by this formula. It divides in the ratio minus न्यूमरेटर में ax1 plus by1 plus c divided by denominator में ax2 plus by2 plus c. So this is the ratio in which this particular line divides the join of A and B. A and B are 2 points. Next thing, shifting of origin. Just a second. So shifting of origin. Now shifting of origin is also called as translation of axis. Shifting of origin is also called as translation of axis without rotation of axis. ठीक है, without rotation of axis। हमने देखा था हम origin shift करते हैं keeping the axis parallel to the original coordinate axis. So that is called as shifting of origin or translation of axis. And obviously this has to be done without rotation of axis. And in this case, if small xy are old coordinates, capital XY are new coordinates, ठीक, तो जो नया पॉइंट हमारा है, पॉइंट के जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है, दे आर गिवन बाय दिस फार्मूला। कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस h, कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस k। हमने फार्मूला स्ट्रेट लाइन चैप्टर में किया हुआ है, ठीक। नाउ समटाइम्स वी हैव टू रोटेट द एक्सिस। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या फार्मूले होते हैं, अब इसे एक बार समझे। रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या फार्मूले होते हैं? First of all, when we are rotating the axes are to be rotated keeping them perpendicular to each other. आपने x एक्सिस को थोड़ा सा रोटेट कर दिया, y एक्सिस को ज्यादा रोटेट कर दिया, तो ऐसे रोटेशन नहीं होता है, बिकॉज एक्सिस का कंसेप्ट ही वही है, दे आर परपेंडिकुलर टू each other. X axis and y axis are always perpendicular to each other. So here whenever we are rotating the axis, it means origin is not shifted, origin at its place only. ठीक। दूसरी चीज, जितना आप x एक्सिस को रोटेट करोगे उतना ही आपको y एक्सिस को भी रोटेट करना है। क्यों? सो दैट एंगल बिटवीन देम ऑलवेज रिमेन्स अ राइट एंगल। ठीक है, तो इस केस में अगर हम थीटा से रोटेशन करते हैं, सो बाय एंगल थीटा वी आर रोटेटिंग द एक्सिस बाय एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then
देन अगेन न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, मतलब कैपिटल एक्स वाई जो है इसके लिए फार्मूला होता है कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा एंड कैपिटल वाई इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा. सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू लर्न. ठीक, अब रोटेशन ऑफ एक्सेस किस तरीके से होता है देखिए, मेरे पास इधर जगह है, चलिए इधर मैं ड्रॉ करता हूं. दिस इज ओरिजिन, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. और जब मैं रोटेशन करूंगा तो मुझे कैसे करना है, कीपिंग द ओरिजिन फिक्स. ओरिजिन आपका फिक्स रहेगा. एक्स और वाई एक्सिस दोनों रोटेट होंगे. कितने एंगल से, एंगल थीटा से, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मतलब जो एक्स एक्सिस अभी यहाँ पर है ये ऊपर चला जाएगा एंगल थीटा से, इधर हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस. दिस इज न्यू एक्स एक्सिस लेट अस से. अब जब एक्स एक्सिस आपने थीटा से रोटेट कर दिया तो क्या करना होगा आपको, वाई एक्सिस भी थीटा से रोटेट हो जाएगा. सो वाई एक्सिस विल आल्सो गेट रोटेटेड इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज न्यू वाई एक्सिस. ये एंगल कितना होगा अगेन, इट इज थीटा. तो एक्स एक्सिस भी एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ गया थीटा डिग्रीज से, वाई एक्सिस भी आगे बढ़ गया थीटा डिग्रीज से. दोनों का एंगल ऑफ रोटेशन सेम होगा. ठीक, एंड देन इन दैट केस अब ऐसा करने पर क्या होता है कि जो आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट था, ठीक है, ओरिजिनल कोई पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ पर था एक पॉइंट P स्मॉल x कॉमा y. इस पॉइंट को हम रोटेट नहीं करते, पॉइंट इज देयर ओनली. ठीक है, पॉइंट का लोकेशन चेंज नहीं हुआ है, पॉइंट का लोकेशन चेंज नहीं हो. जैसे हम यहाँ पर भी करते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. ये जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है ना, इट इज व्हाट दे आर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, ये वाला पॉइंट है. और जब हम ओरिजिन शिफ्ट कर देते हैं तो ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज हो जाएंगे, जो कि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई से दिए जाएंगे. अब जब हम रोटेशन ऑफ एक्सेस करेंगे तो इन दैट केस आल्सो व्हाट विल हैपन, ये जो पॉइंट है अब इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो जाएंगे. चेंज क्यों होते हैं कोऑर्डिनेट, देखिए अब ऐसे स्केल बनेगी ना. आपने पहले कैसे लिखा था, इधर 0 1 2 ऐसे लिखा हुआ था. ठीक, तो अकॉर्डिंगली ये कोऑर्डिनेट है जो भी होंगे इसके 2 3 होगा या 5 1 होगा, जो भी होगा यहाँ पर. लेकिन जब आप एक्सिस को रोटेट कर दोगे तो इधर चला गया एक्सिस. अब आप 0 1 2 3 किधर लिखोगे, यहाँ पर 0 1 2 3 इस तरीके से जाएगा. तो ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट जो पॉइंट वहीं पर है, ग्राफ पेपर पर पॉइंट वहीं पर है, लेकिन कोऑर्डिनेट उसके नए बन जाएंगे. ठीक, एंड दैट इज गिवन बाय दिस टू फार्मूला. कैपिटल एक्स के लिए फार्मूला है, कैपिटल वाई के लिए फार्मूला है. नेक्स्ट थिंग, अब स्लोप ऑफ ए लाइन का फार्मूला मैंने क्यों लिखा, तो आप तो बोलेंगे सर वो तो इजी है, हमने तो बाकी चीजें तो डिस्कस नहीं की. तो यहाँ पर मुझे स्लोप के लिए जो अल्टरनेटिव वर्ड है उसे मेंशन करना था. स्लोप के लिए अल्टरनेटिव वर्ड होता है ग्रेडियंट. ठीक है, स्लोप इज नथिंग बट ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन. बाकी उसके फार्मूले आपको है मालूम, जैसे 2 पॉइंट फॉर्म में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक, एंगल के फॉर्म में अगर चाहिए तो m इज इक्वल टू tan थीटा वेयर थीटा इज इंक्लिनेशन. सो दैट इज द स्लोप, बट इट इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड. स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज +1 or -1. So any line which is equally inclined to coordinate axis, दोनों को भी इक्वली अगर इंक्लाइंड होगा, so obviously it is making an angle of 45 degree. It is making an angle of 45 degree. ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड लाइन. This line is equally inclined, which is making an angle of 45 डिग्री. तो ये एक्स एक्सिस के साथ भी 45 करती है, वाई एक्सिस के साथ भी 45 करती है. सो दिस इज कॉल्ड एज इक्वली इंक्लाइंड. अगर ऐसी लाइन है तो इसका स्लोप या तो +1 होगा या तो -1 होगा. +1 होगा कब, जब इस टाइप की लाइन होगी आपकी, मतलब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन होगी, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में. तो एंगल कितना हुआ, 45 डिग्री.
So if it is making an angle of 45 degree, then we will get slope as +1. ठीक है, और अगर यहां पर भी आपकी इक्वली इंक्लाइंड लाइन हो सकती है, दिस इज ऑल्सो इक्वली इंक्लाइंड, दिस इज ऑल्सो इक्वली इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, इधर 45 है, इधर भी 45, आप किस भी तरीके से एज्यूम करिए, देन इन दिस केस द एंगल बिकम्स 135 डिग्री, क्योंकि एंगल आप यहां से मेजर करेंगे। स्लोप निकालने के लिए हमें इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखना होता है, तो यहां से जब आप मेजर करेंगे इट विल बी 135 डिग्री, एंड इन दैट केस स्लोप विल बी -1. So theta is either 45 or 135 for equally inclined lines to coordinate axis. Next, अब पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन तो हमें मालूम है, कंडीशंस मालूम है, क्या कंडीशंस है, L1 पैरेलल L2 if M1 is equal to M2. So that is the one condition. But there is another condition also. If M1 and M2 both does not exist, मतलब कि M1 भी इनफाइनाइट है, M2 भी इनफाइनाइट है, तो ये कंडीशन आपको कब मिलेगी, दिस कंडीशन इज अराइव्ड फॉर लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो ये हर बार जरूरी कि M1 इक्वल टू M2 आपको मिलेगा। हो सकता है कि M1 डज नॉट एग्जिस्ट मतलब नॉट डिफाइंड, M2 डज नॉट एग्जिस्ट मतलब नॉट डिफाइंड। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका मतलब दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, तो ये तो नंबर से आपको मिलेगा, ये आपको नंबर से मिलेंगे, यहाँ पे दोनों भी नॉट डिफाइंड होंगे स्लोप्स। इन दैट केस आल्सो L1 इज पैरेलल टू L2। सेकंड थिंग, L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये कब हो सकता है, आपको कंडीशन मालूम है, M1 M2 इक्वल टू -1 मीन्स slope of the lines are negative reciprocals of each other. In that case, line 1 and line 2 are perpendicular. ये तो हो गई है कंडीशन जो आपको नंबर्स से मिलती है। लेकिन कभी आपको ये भी हो सकता है कि if M1 is equal to 0 and M2 does not exist, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन 1 जो है इट इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड लाइन 2 इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, and it means line 1 and line 2 are perpendicular to each other. So in this second case, perpendicular के केस में M1 M2 equal to -1 ये तो है ही, और मैं लिख लेता हूं यहाँ पर M1 M2 equal to -1, that is true. But it is also true when M1 is equal to 0 and M2 equal to infinity, या फिर M2 equal to 0 M1 equal to infinity. Then also the lines are perpendicular because we know that 0 and infinity are reciprocals of each other. ठीक, अब एक शॉर्टकट यहाँ पर ध्यान में रखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए पॉइंट। नो व्हाट इज द ट्राइसेक्शन? बाइसेक्शन तो आपको मालूम है, बाइसेक्शन क्या होता है, बाइसेक्शन मतलब एक घाव दोन टुकड़े, ठीक है, मतलब यहाँ पर सेंटर में आपने कर दिया, दिस इज बाइसेक्शन, जहाँ पर क्या आपको दोनों इक्वल मिलते हैं। सो अगर इस बाइसेक्शन के आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए इस पॉइंट के, तो कौन से फार्मूला से मिलेंगे बताइए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बाइसेक्शन ऑफ दिस जॉइंट, ये जो है बाइसेक्शन किया मैंने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको कौन से फार्मूला से मिलेंगे, क्या नाम है उस फार्मूला का, फार्मूला ना बताइए, बस नाम बताइए। यस करेक्ट, कल्याणी मंदार करेक्ट है। कौन सा फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है ना, इट इज मिड पॉइंट फार्मूला। तो अगर आपको बाइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स चाहिए देन इट इज मिड पॉइंट फार्मूला। कौन सा होता है मिड पॉइंट फार्मूला, यूज किया हमने x1 + x2/2 y1 + y2/2, दैट इज मिड पॉइंट फार्मूला सेंटर ढूंढने के लिए। हम इसे अलग नाम क्या बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ दिस लाइन और सेंटर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। क्लियर। अब अगर आपको ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं, ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन मतलब क्या हुआ, जैसे ये लाइन है, ठीक है, दिस इज लाइन सेगमेंट एंड वी हैव टू मेक 3 इक्वल पार्ट्स, वी हैव टू डिवाइड दिस इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर एक हो गया,
यहाँ पर एक हो गया, ये तीनों भी पार्ट मान लीजिए इक्वल है। तो आपको कितने मतलब पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कितने होंगे? पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन 2 होंगे। पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन 1 होता है। 2 पार्ट्स करने हैं तो इसका मतलब 1 पॉइंट, 3 पार्ट्स करने हैं तो 2 पॉइंट, 4 पार्ट करने हैं तो 3 पॉइंट। इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। तो हमने बाइसेक्शन तो देखा, बाइसेक्शन 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है तो एक सेंटर में आपको पॉइंट चाहिए, उसके कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूला से मिलेंगे आपको। अब अगर मुझे ट्राइसेक्शन करना है, इट मींस आई हैव टू डिवाइड दिस जॉइंट AB in 3 equal parts, in 3 equal parts, 1, 2 और 3. Then in that case they are given by this formula, 2x1 plus x2 upon 3, 2y1 plus y2 upon 3. So this is one point, and another point is x1 plus 2x2 upon 3, y1 plus 2y2 upon 3. This is another point. Clear? So these are the coordinates of trisection of a line segment or of a joint. ठीक। अब अगर मुझे, अब ये किस फार्मूला से आई? अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ, मतलब अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इंटरनल डिवीजन जो है सेक्शन फार्मूला, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको इसके कोऑर्डिनेट ढूंढने इस पॉइंट के, सो इट इज डिवाइडिंग 1 और इधर कितना हो जाएगा 2, और जब इसके ढूंढने होंगे आपको तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2। सो ट्राइसेक्शन के जो पॉइंट्स है, एक डिवाइड करता है 1:2 में, दूसरा डिवाइड करता है 2:1 में। सो उसी से ये आपका फार्मूला बना है। अब अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो कैसे करेंगे? इट्स क्वाइट सिंपल, 2 बार आप करेंगे हम, है ना। तो अब हमें तो मालूम है बाइसेक्शन के लिए मिड पॉइंट फार्मूला है, ट्राइसेक्शन के लिए आपको 2 पॉइंट इस फार्मूला से मिलेंगे। 2:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो 2 पॉइंट्स आपके पास ये हो गए। अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, 4 इक्वल पार्ट्स में, ए और बी तो आपको गिवन है, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? पहले तो 4 इक्वल पार्ट्स में मतलब टोटल पॉइंट्स कितने निकालने होंगे आपको? 3, 4 नहीं। 4 इक्वल पार्ट्स मतलब पॉइंट निकालने होंगे 3। कौन से 3 होंगे? एक तो यहाँ पर हो गया, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ये हो गया आपके 4 इक्वल पार्ट्स, 1, 2, 3, 4। और इसको लिए कोई फार्मूला की जरूरत हमें नहीं है, ऑलरेडी हमें ए पॉइंट मालूम है, बी पॉइंट भी मालूम है। हम क्या कर लेंगे? इन दोनों का, ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। लेट अस से पॉइंट सी यहाँ पर हो गया, तो एक पॉइंट मिल गया। फिर आप ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा जो कि होगा पॉइंट बी। अगेन सी और बी का मिड पॉइंट निकालेंगे हम तो हमें पॉइंट ई भी मिल जाएगा। सो जब आपको 4 इक्वल पार्ट्स में करना है, इट मींस इट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ, डबल एप्लीकेशन ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। क्लियर? मिड पॉइंट फार्मूला 2 बार यूज करना पड़ेगा, एक बार ये निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का, 3 बार, तो आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा लोकस के बारे में। लोकस, तो हमने देखा था व्हाट इज द लोकस? लोकस इज नथिंग बट इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट P. लोकस इज नथिंग बट पाथ ट्रेस्ड बाय a point P according to some geometrical condition, and it is always a curve. It is always a curve. ठीक है। Let us say एक लोकस किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं? Let us say this is a fixed point. This is a fixed point. And there is one point जिसका की नाम है P, which is moving such that ये जो पॉइंट को मैंने नाम दिया, लेट अस से OP, इसको मैंने O नाम दे दिया। इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस पॉइंट P इज मूविंग such that OP is always constant, such that OP is always constant, and let us say it is equal to 5.
So this point P is moving in a way such that OP is always equal to 5. तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट हुआ P, फिर इधर 5 पे, इधर 5 पे, इधर 5 पे, इधर 5 पे, सारे डिस्टेंस 5 हो जाएंगे। तो अब जो P पॉइंट मूव हुआ ये किस डायरेक्शन में मूव हुआ, फिर मतलब किस तरीके से मूव हुआ, इस तरीके से मूव हुआ, which is nothing but a circle of radius 5। ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा ऑफ रेडियस 5। क्लियर, वो पॉइंट फिक्स्ड है, मैंने पॉइंट P को वेरी कर रहा हूं। P इज ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, मतलब आप देखेंगे तो एक सर्कल तैयार होगा और इस सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, ऑल द पॉइंट्स आर ऑलवेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट O। तो देन दिस circle is called as the locus of the point P. According to which condition? According to the condition OP is equal to 5। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लोकस का इक्वेशन निकालते हैं। अब लोकस का इक्वेशन निकालने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले तो हम जो ये पॉइंट है P, इसे हम एज्यूम करते हैं, लेट दिस पॉइंट P इज इक्वल टू आइदर x1 y1 और समटाइम्स इट इज आल्सो टेकन एज h, k। तो इस पॉइंट P के हम कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं आइदर x1 y1 और h, k, एंड देन अकॉर्डिंग टू द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, वी फाइंड आउट सम रिलेशन बिटवीन x1 एंड y1 और वी फाइंड आउट सम रिलेशन बिटवीन h एंड k, एंड इन फाइनल स्टेप हम क्या कर लेंगे, x1 y1 को रिप्लेस कर देंगे x y से, या फिर h और k को रिप्लेस कर देंगे x और y से। That is the method of finding locus of this locus of the point P। ठीक, इस टाइप के प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व किए हैं। अब कुछ कंडीशंस है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कंडीशन कि OP इक्वल टू 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल हुआ। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, इफ PA अपॉन PB इक्वल टू K, मतलब कि कांस्टेंट होगा, देन लोकस ऑफ पॉइंट P इज अ सर्कल। तो यहाँ पर P A और PB दो पॉइंट्स की बात हो रही है, ठीक है, A और B, एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, एंड P इज द वेरिएबल पॉइंट जो कि मूव हो रहा है अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन। और उस कंडीशन में अगर PA अपॉन PB आपका कांस्टेंट है, देन इसका मतलब लोकस ऑफ P इज अ सर्कल। सेकंड थिंग, इफ A एंड B आर फिक्स्ड पॉइंट्स, दे आर ऑलवेज फिक्स्ड पॉइंट्स, है ना, वो हमेशा फिक्स होते हैं, देन लोकस ऑफ पॉइंट P इज arc of a circle if angle APB is equal to constant। angle APB अगर constant होगा, then it represents a arc of a circle। अगर angle APB 90 डिग्री होगा, then it represents a circle with diameter AB। it represents a circle with diameter AB। अगर PA plus PB constant आता है, PA plus PB comes out to be constant, then it is a ellipse, एंड PA माइनस PB अगर कांस्टेंट होगा, देन इट इज अ हाइपरबोला। ठीक है, सो दीज आर द 4 कंडीशंस। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर टोटल 5 कंडीशंस है कि अकॉर्डिंग टू PA एंड PB, PA और PB के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि लोकस ऑफ पॉइंट P सर्कल है, या फिर आर्क ऑफ ए सर्कल है, या फिर इलिप्स है, या फिर हाइपरबोला है। ठीक, तो अब ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आप इसके प्रॉब्लम्स अगर देखेंगे, सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी एबल टू सॉल्व। कुछ प्रॉब्लम्स में हो सकता है आपको डाउट्स आए, तो वो सारे हमें डिस्कस करने हैं, हम डिस्कस करेंगे कल। आज के लिए आपका काम क्या है, तो 2 चीजें, एक तो इसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख लीजिए, बट दिस ऑल दिस थिंग्स आर आल्सो कवर्ड इन क्लास वर्क में। आप लिखेंगे फार्मूले, क्लास वर्क में फार्मूले 8.1, ओनली 8.1 के आपको क्या लिखने हैं, फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला है, ऑल दिस फार्मूले आर देयर। ठीक, तो ये सारे आप क्लास वर्क में लिखेंगे। होमवर्क में सो देयर आर टोटल 116 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 116 क्वेश्चंस है। एंड नाउ वी हैव टू मूव, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो हमें थोड़ा सा अभी टाइम भी कवर करना है। अभी तक आपने जो भी कर लिया, अब जो क्वेश्चन 116 है
मैं थोड़ा सा, आपने 40 क्वेश्चन बोला था, थोड़ा से मैं एक्सटेंड कर देता हूँ इसे। इसमें हम करेंगे 2 पार्ट्स, ऑड और इवन। ठीक है, सो देयर आर 58 ऑड क्वेश्चंस, 58 इवन क्वेश्चंस। 58 odd questions are to be attempted by girls and 58 even questions are for boys। ठीक है, 40 ने मैंने 58 कर दिया, ट्राई करिए, नहीं हुआ तो एक आध दिन हम और एक्सटेंड कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डाउट जितने आएंगे तो टाइम तो एक्सटेंड होगा, बट फिर भी हमें टाइम भी कवर करना है, टॉपिक्स भी कवर करने हैं। सो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, जो ऑड क्वेश्चन है 58 दैट हैज टू बी अटेम्प्टेड बाय ऑल द गर्ल्स, एंड फॉर बॉयज इवन क्वेश्चंस है ना, 116 में से जो इवन क्वेश्चन है दैट इज 58, सो बॉयज अटेम्प्ट करेंगे। जो भी आपके डाउट्स है, होमवर्क आपको सेंड करना नहीं है, तो जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे फोटो भेजिएगा, उसका नंबर ना भेजिएगा, उसका उस क्वेश्चन का फोटो भेजिएगा विद ऑप्शंस, तो क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ तक कुछ डाउट है क्या, पूछिए तो एक बार।